بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کی تیاری سے آپ کا میزبان رفیق انصاری حاضر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوگا اور ہمارے ساتھ موجود ہے محمد حشام قادری صاحب، اور یہ بحیثیت ایک عالمی سطح کے نعت خواں بھی ہیں۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ محمد حشام قادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان آمنت بالله صدق الله العظيم۔ بڑی خوبصورت تلاوت کر رہے تھے سورہ رحمان کی، اور یہ 27واں پارا، اور محمد احتشام قریشی قادری ہمارے ساتھ زبردست قرأت کر رہے تھے، اور یہ ممتاز ثنا خوان رسول بھی ہے اور ان کی آواز کوئل جیسی ہے اور عالم اسلام میں بڑی مقبولیت ان کو حاصل ہے۔ اور ان سے ہم سنیں گے گلائی عقیدت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حمد و نعت بھی، اور یہ بڑی نعت خوبصورت پڑھتے ہیں اور ان کا کلام مختلف شعراء میں ان کا بڑی مقبولیت ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلکہ قرأت بھی کی، اور محمد احتشام قادری صاحب سے ہم گلائی عقیدت میں نذرانہ حمد و نعت پیش کرتے ہیں۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آقا آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گلائی عقیدت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے محمد احتشام قادری، اور ان کی بڑی پیاری آواز، اور اس کے بعد انہوں نے تلاوت بھی سورہ رحمان کی بڑی خوبصورت، اور جہاں جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ رمضان المبارک کی آمد بھی ہو چکی ہے، اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں سحری بھی کر رہے ہیں، مختلف مساجد میں جو ہے وہ نعتوں کی بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور میرے ساتھ اس وقت بڑی اہم شخصیت یہاں موجود ہے، اور ان سے ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان المبارک کی حوالے سے روشنی ڈالیں گے، مختلف مقامات پہ کیا کیا واقعات پیش آئے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ سلطان مدنی صاحب، جو چیئرمین ہے مدارس الصحابہ، اور ان کا ایک بڑا زبردست کردار ہے، بڑی خوبصورت اور بڑا زبردست بیان کرتے ہیں۔ علامہ سلطان مدنی صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ سحری، جو کہ رمضان المبارک میں سحری کی اہمیت کیا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمدللہ
الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں K21 کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ہمارے انصاری صاحب کا کہ جنہوں نے اس عظیم ٹاپک پر گفتگو کرنے کا مجھے موقع فراہم کیا۔ اللہ کریم انہیں، ان کی پوری ٹیم کو، ان کے احباب کو رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے اور بالخصوص سحری کی برکتیں عطا فرمائے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی فرضیت کو بیان فرمایا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں روزے کی فرضیت کو بیان کیا۔ اب روزہ رکھنے کا طریقہ اور انداز کیا ہے، یہ انداز ہمیں کریم آقا سرور انبیاء امام الانبیاء نے بتایا۔ اب ابتدا میں جب روزے فرض ہوئے تھے، یہ سحری کا انداز یہ تھا کہ اگر کوئی مغرب کی نماز کے بعد سو جاتا تھا تو وہ سحری نہیں کر سکتا تھا، اور جو ہے مغرب سے پہلے مغرب کے بعد اور سونے سے پہلے اس نے جو کھانا ہے وہی سحری قرار پاتی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول یہ مشقت والا کام کرتے تھے، تو آپ دن بھر روزے میں بھی تھے اور محنت مزدوری بھی کرتے رہے۔ شام کو گھر آئے، افطار وغیرہ کیا، اس کے بعد تھکے ہوئے تھے، تھوڑی دیر لیٹے، بیوی نے کہا میں کچھ کھانا بنا لوں سحری کے لیے، تو آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اب بیوی نے کھانا تیار کیا، سامنے پیش کیا، اٹھایا آپ کو، تو آپ نے کہا کہ اب تو میں سحری کر نہیں سکتا۔ اسی حالت میں آپ نے روزہ رکھا۔ شام کے وقت آپ پر نکاہت اور کمزوری طاری ہوئی، اس وجہ سے آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ بات حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے غلاموں پر کرم فرماتے ہوئے اب سحری کو طلوع صبح صادق تک رکھ دیا کہ رات کے کسی بھی حصے میں آپ سحری کر سکتے ہیں۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ بینہ نازل ہوئی اور سونے کی جو قید تھی اس کو ختم کر دیا گیا اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک احکامات کو بیان کیا گیا۔ پھر یہ سحری ہے، یہ سحری اتنی اہم نعمت ہے، کئی لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی آج تو میں نے بغیر سحری کے روزہ رکھا۔ یہ بات فخر کی نہیں ہے، یہ تو افسوس کی ہے کہ آپ سے ایک عظیم سنت رہ گئی۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے روحانی طاقت عطا فرمائی کہ میں بغیر کھائے پیے اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں اور روزہ رکھ سکتا ہوں اور کئی دن ایسی حالت میں گزار سکتا ہوں، لیکن میں یہ پسند کرتا ہوں سحری کروں، کیونکہ ایک سنت پر عمل کرنا 1000 نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اس اعتبار سے یہ بات کہ ہم نے تو بغیر سحری کے روزہ رکھا، یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک سنت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے رہ گئی۔ اب سحری میرے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کرو، کیونکہ سحری پوری کی پوری برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پوری کی پوری برکت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کچھ کھائیں کچھ پئیں جو بھی معاملہ کریں اس کا قیامت کے دن حساب ہوگا، لیکن آپ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سحری میں اور افطاری میں جتنا کھا لیا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے سحری بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور سب سے بڑی بات
मेरे करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सैरी करो और सैरी में थोड़ी ताख़ीर करो, और जो बंदा सैरी करता है अल्लाह ताला के फरिश्ते उस पर रहमत नाजिल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। तो अब उलमा ने लिखा है, फरमाया सैरी में ताख़ीर कितनी हो का रात के आप करें 6 हिस्से। मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने खजाने इरफान शरीफ के अंदर नकल किया कि रात के आप 6 हिस्से करें, और जो छठा हिस्सा है आप उसमें आप सहरी करें कि ये आखिरी वक्त है और इस वक्त में करना अफजल है। मेरे करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह इशारा करते हुए फरमाया सहरी में ताख़ीर करो और दिन में थोड़ा आराम किया करो, क्योंकि सहरी क़ुव्वत देने वाली है और दिन का आराम रात की इबादत पर मुआविन साबित होगा, इसलिए सहरी। और मैं यहाँ पर नाजरीन को ये बात भी बताता चलूँ कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि रात यानी सहरी में ताख़ीर में कर रहा हूँ या अफजल जो वक्त है, तो आप यूँ करें कि रात मसलन सूरज गुरूब हुआ 7 बजे और सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है 4 बजे, तो अब ये तकरीबन बनते हैं 9 घंटे। मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि गुरूब होने का वक्त और सहरी के ख़त्म होने का वक्त, वो टाइम निकाल लें, जितना टाइम निकल रहा है उसको 6 पर तकसीम कर दें। आपने मसलन 9 को हमने 6 पर तकसीम किया तो 1.5 घंटा आया, तो उस इख्तिताम से 1.5 घंटा पहले ये आखिरी वक्त है और ये ताख़ीर का वक्त है। इस वक्त में सहरी करना ये अफजल व आला है और सहरी करनी चाहिए। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब सहरी मुख्तलिफ चीज़ों से हम करते हैं। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अब मैं यहाँ पर आपको एक सुन्नत भी बताता चलूँ, क्योंकि आप सहरी तो करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से आप करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक उस सुन्नत को भी अगर काश शामिल कर लिया जाए तो सुभान अल्लाह इतना बड़ा सवाब मिलेगा। सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मेरे करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर और पानी शरीफ आपने सहरी में इस्तेमाल फरमाया, इसलिए हो सके तो कभी कभार नहीं तो रोज़ाना आप खजूर का इस्तेमाल फरमाएं, और पानी भी जहाँ रोटी आप खाएं, जहाँ आप दही इस्तेमाल करें, जहाँ आप सालन इस्तेमाल करें, वहाँ उसके साथ खजूर भी आप इस्तेमाल फरमाएं। और अगर खजूर में अजवा खजूर मिल जाए सुभान अल्लाह, तो ये अजवा खजूर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जन्नत की खजूर है, तो उसको आप इस्तेमाल करें, पानी को इस्तेमाल करें। और इफ्तार में भी इसी तरीके से मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पूछा गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इफ्तार कैसे करें, तो फरमाया खजूर से करें, अगर खजूर ना मिले तो छुआरे से करें, अगर वो नहीं है तो फिर पानी से आप इफ्तार करें। इसलिए नाजरीन से मैं K21 के तवस्सुत से और अंसारी साहब के तवस्सुत से ये बात शेयर कर रहा हूँ कि आप भी इस सुन्नत को ज़रूर अदा करें। जहाँ दीगर डिशें हैं, जहाँ दीगर खाने हैं, जहाँ दीगर ताम हैं जिनसे आप सहरी करते हैं, वहाँ पर खजूर भी इस्तेमाल करें। वहाँ पर आप जो है अगर खजूर नहीं है छुआरा और पानी इस्तेमाल करें। अल्लाह करीम प्यारे करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें सही मानों में सहरी करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ मरहमत फरमाए। अल्लामा सुल्तान मदनी साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे और रोशनी डाल रहे थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी। उन्हें बताई कि कहा कि सहरी के अंदर अगर 2 खजूर हो और पानी इस्तेमाल किया जाए तो ये सरकार की सुन्नत है। हम चलते एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और यहाँ होगी सहरी, और जहाँ सहरी पर सजेगा दस्तरखान, और यहाँ होगी बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं सहरी के दस्तरखान पर। चलते हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और चलेंगे सहरी के दस्तरखान पर।
ट्रैक पे जाने से पहले हमारी शहरी की तैयारी के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बातें उसके सुल्तान मदनी साहब हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत पर रोशनी डाली और रमज़ान मुबारक के हवाले से जो शहरी के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। यकीन तो हमारे जो नाज़रीन है जब प्रोग्राम देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि अल्लामा साहब ने कितनी अच्छी बातें की। इसके अलावा एहतशाम इन्होंने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलाई अकीदत का नजराना भी पेश किया। और अब शहरी के दस्तरखान पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ A1 होम यानी कि सेक्टर A3 सरजानी टाउन और कहते हैं KDA स्कीम नंबर 41 में हम यहाँ मौजूद हैं और A1 की जानिब से आज शहरी का एहतमाम किया गया और फैज़ान हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके दोस्त नासिर साहब भी यहाँ मौजूद हैं और अल्लामा साहब ने तो बातें की मगर हम बात करते हैं अल्लामा साहब से इस वक्त मालूमात भी करेंगे कि शहरी का दस्तरखान इस वक्त सज चुका है। तो अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद, अल्लामा सुल्तान मदनी साहब से हम बात करते हैं। अल्लामा साहब ये बताइएगा क्या शहरी की तैयारी इस वक्त टेबल पर है और यहाँ मज़ेदार खाने लगे हैं, फैज़ान साहब ने जो ज़बरदस्त खाने रखे थे इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि शहरी के दस्तरखान पर हम बैठे हैं तो इस नीयत से बैठे हैं कि हम हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर रहे हैं और फैज़ान साहब ने ये जो एहतमाम किया है सुभान अल्लाह, ये वो एहतमाम है मुझे याद पड़ रहा है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जो है वो आपकी बात आपके यहाँ आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अनस सहरी के लिए कुछ ले आओ। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला ने सहरी का खाना पेश किया। तो फैज़ान मुस्तफ़ा माशाल्लाह ये हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक साहबी रसूल की सुन्नत अदा कर रहे हैं और नाम भी ये दो सुन्नतें हैं इनकी, नाम इनका फैज़ान हुसैन है, फैज़ान हुसैन है। एक साहबी रसूल की सुन्नत भी है और फिर सहरी करना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है और फिर ये माशाल्लाह इतने खाने और ये सिलसिला। तो अब ये मैं यहाँ खाने देखकर मेरे ज़हन में एक बात आई, बुजुर्ग में लिखा है फरमाया हर खाने का हिसाब होगा, हर खाने का, लेकिन जो खाना सहरी या इफ्तारी में खाया जाएगा जितना बंदा खा लेगा उसका कोई हिसाब नहीं होगा। हमारे साथ अल्लामा सुल्तान मदनी साहब थे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। हमारे साथ नासिर साहब भी शहरी के दस्तरखान पे मौजूद है, आइए उनसे भी कुछ बातें करते हैं। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। आज फैज़ान ने बड़ा ज़बरदस्त शहरी का एहतमाम किया है तो आपको ये शहरी कैसे लग रही है और आप क्या कहेंगे? माह रमज़ान है और ये हमारे लिए ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने जो त्यौहार दिया है मुसलमानों के लिए बहुत खूबसूरत त्यौहार है ये कि रब करीम ने हमें इस त्यौहार से नवाजा। और माशाल्लाह क्या ही बात है माह रमज़ान की कि अल्लाह ताला ने बहुत रहम किया हुआ है हम पे और मैं समझता हूँ कि ये हमारी बहुत ज़्यादा खुशनसीबी है। और ये सबसे बड़ी खुशनसीबी जो है ये फैज़ान हुसैन साहब की है कि अल्लाह ताला ने देखे इन्हें इस काबिल किया माशाअल्लाह कि इतने सारे लोगों के लिए बहुत कुछ इन्होंने भी सोचा हुआ है, जिस तरह आपको बताया इन्होंने, और माशाअल्लाह कि आज इन्होंने हमारे लिए एहतमाम किया। अच्छा ये नासिर साहब बताए कि A1 होम है और यहाँ पहली मरतबा मेरा ख्याल है कि इस दफ्तर में पहली सहरी हो रही है, तो आप मज़ीद क्या कहेंगे यहाँ की? मज़ीद यही है इंशाअल्लाह ताला जो हमने सोचा हुआ है, फैज़ान साहब ने जो सोचा हुआ है इंशाअल्लाह ताला कि अभी तो आमद है ये और अभी इसके लिए हमारे जो A1 होम्स के जितने अलॉटी हैं उनके लिए एक हम काफ़ी यानी ये पूरे महीने में इंशाअल्लाह ताला अफ्तार पार्टी के प्रोग्राम रखेंगे, सहरी के प्रोग्राम रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारे यहाँ ज़ाहिर है अभी कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से बाकी है ना, तो शुरू है अभी बहुत तेज़ी से शुरू है, हमारा सैवरेज का काम चल रहा है। तो हमारे जितनी मैनेजमेंट और जितने हमारे मजदूर वगैरह होंगे उसके लिए हमने खुसूसी फैज़ान साहब ने हमें हिदायत दी है कि खुसूसी तौर पे उनके लिए बहुत अच्छे से अच्छा इंतजाम किया जाए। मेरे साथ A1 होम के फैज़ान हुसैन साहब यहाँ मौजूद हैं और ये इनका नाम है हुसैन, तो यकीनी तौर पे हुसैन का रुतबा भी कितना बड़ा है। फैज़ान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान आपका नाम फैज़ान हुसैन है और यकीनी तौर पर फैज़ान मार्केटिंग भी आपकी है। A1 होम सेक्टर A3 ज़बरदस्त यहाँ पर आपने मेला सजाया है, आपकी प्रोडक्शन भी हो रही है, यहाँ लोगों ने मकान भी तैयार कर दिए। तो ये आज आपने जो सहरी का एहतमाम किया तो आपने क्या सोच के किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर ये तो सारा अल्लाह ताला करवाता है, मेरे हाथ में तो नहीं मैं किसी को रिस्क खिलाऊँ या किसी के साथ कुछ मामला करूँ। बस ये है कि जितना है अल्लाह ने दिया है, कोशिश यही है कि बस लोगों के साथ मामला आते लेन देन खाना पीना ये सारा चलता रहे।
सोच यही है बस। फैजान ये बताइएगा कि आप मदीने शरीफ भी गए, मक्के शरीफ भी गए, तो वहाँ आपने कोई इफ्तारी या कोई रोज़ा वोज़ा खोला या रमज़ान मुबारक के अलावा गए थे आप? नहीं, रमज़ान के अलावा भी गया हूँ, रमज़ान में भी गया हूँ, लेकिन तो रमज़ान में गए तो वहाँ की सहरी और इफ्तारी कैसी लगी? बॉस मैं गया था लास्ट डे के अंदर, इतना ज़्यादा खैर वो नहीं था, लोगों का इत्तेकाफ़ वगैरह ज़्यादा था, लेकिन नॉर्मल डेज से भी बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत रश होता है, और यकीन करें एक अलग ही रूहानियत ही होती है। अभी मैं लास्ट टाइम 2-3 महीने पहले लॉकडाउन में गया था, तो वो बात नहीं है, जो एक रश था, जो माहौल होता था, वो सब कोरोना ने खा गया। फैजान माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है और बड़ी ज़बरदस्त, आप कुछ अशार भी सुनाते हैं, और नातिया रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर शख्स की ज़ुबान पर होता है, तो आप भी कोई एक दो अशार बड़े प्यारे प्यारे थे सरकार दो वसल्लम की बारगाह अक़दस में, तो क्यों ना एक दो अशार नातों के हो जाएं? मेरे साथ तो खैर एहतशाम भाई बैठे हैं, ये हैं नात ख़्वां, अगर ये पढ़ें तो मैं इनके साथ शेयर कर लूँ। मगर दो अशार आपकी ज़बान से भी सुनना चाह रहे, प्यारी प्यारी आवाज़ है। आज शायरी का मजा ही दोबारा है। चलें ठीक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। शुक्रिया। हमारे साथ फैज़ान हुसैन साहब, और इनका फैज़ान भी बढ़ रहा था, और उन्होंने बड़े मज़ेदार खाने रखकर इनकी खुशबू भी जारी थी, और ऐसी खुशबू जैसी इन्होंने बड़ी नात सुनाई। और हमारे साथ इस वक्त एक मुमताज़ सनाखान रसूल, इनकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, और रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न से भी इनकी आवाज़ गूंजती है। और जब रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, और इस महीने में जितनी भी नेकी जाए वो कम है, और इनका नाम है एहतिशाम कादरी, और ये मुमताज़ सनाखान रसूल है। हम एक इनसे खूबसूरत सी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइए बार इनसे सुनते हैं। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श-ए आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। और फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाना हो जी, मौत क्या जिंदगी की भी परवाना हो, काश सरकार
ایک بار مجھ سے کہیں کاش سرکار ایک بار ہم سے کہیں جا تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے بھائی جا تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ہمارے ساتھ ممتاز نعت خواں احتشام قادری ہمارے ساتھ گلہائے عقیدت میں خوبصورت نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے، اور آج ہم A1 ہوم میں موجود ہیں اور اس وقت سحری کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ سحری کریں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ A1 ہوم سے ہمیں اجازت دیجیے، کل یعنی کہ گزشتہ دنوں اور یا گزشتہ روز نئے مہمانوں کے ساتھ سحری کے دسترخوان پر ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔